السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معاذ فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت، آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیجز۔ ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities کے لیے separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project، 25% سے booking، بقایا 2 سال کے آسان اقساط پر۔ پیرس کنسٹرکشنز، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد میں وارڈ ایڈمنسٹریشن کا جمعے سے ہوگا آغاز۔ ہر وارڈ پر 10 رکنی عملہ، عوامی بلدی مسائل کی یکسوئی، KTR کا اعلان۔ بنیادی سطح پر قائدین سخت محنت کریں، سروے کی بنیاد پر ٹکٹ دیا جائے گا۔ کانگریس کی کامیابی یقینی ہے، PCC صدور جنرل سیکرٹریز کے اجلاس سے ریونت ریڈی کا خطاب۔ تلنگانہ تحریک کے دوران تشکیل کو لے کر جو خدشات پیدا ہوئے تھے، ان کو غلط ثابت کر دیا۔ ملک کے ریاست رول ماڈل، مذہبی منافرت سے پاک، ہریش راؤ کا خطاب۔ کولکتہ سے حیدرآباد سونا منتقلی کی کوشش ناکام، DRI نے 10 کلو سے زائد سونے کو ضبط کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے تحت شہریوں کے بلدی مسائل کی یکسوئی، شکایات کی عاجلانہ سماعت اور بروقت درکار اقدامات کے لیے 150 وارڈ آفس کا جمعہ 16 جون سے آغاز ہوگا۔ وزیر بلدی نظم و نسق و انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما نے وارڈ سطح کے عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ اجلاس ریاست کے یوم تاسیس کے موقع پر یوم گڈ گورننس ڈے کے طور پر منعقد کیا گیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ 16 جون سے تمام 150 وارڈز کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ اس کے ذریعے نظم و نسق کو عوام کے قریب تر لے جایا جائے گا۔ ہر وارڈ آفس پر 10 ارکان ہیں۔ اسسٹنٹ میونسپل کمشنر عہدے کا حامل عہدیدار وارڈ ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوگا۔ عوام ان وارڈ آفس سے رجوع ہو کر بلدی مسائل سے متعلق اپنی شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ وارڈ کے ہر عہدیدار کی ذمہ داری مختص کر دی گئی ہے۔ بلدی خدمات کی مناسب نگہداشت، ترقیاتی پروجیکٹس، سڑکوں کی مرمت، برقی، سینیٹری، آب رسانی اور دیگر مسائل سے متعلق شکایات کی یکسوئی کی جائے گی۔ 10 رکنی اسٹاف میں وارڈ ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے علاوہ ایک انجینئر، ایک ٹاؤن پلانر، جراثیم کش ادویہ سے متعلق اینٹومولوجسٹ، سینیٹری جوان، کمیونٹی آرگنائزر، اربن بایو ڈائیورسٹی سپروائزر، اسسٹنٹ لائن انسپیکٹر، کمپیوٹر آپریٹر اور ریسیپشنسٹ شامل ہوگا۔ سڑکوں پر گڑھوں کو پر کرنا، وارڈ میں عمارتوں کی تعمیر سے متعلق قواعد کا اطلاق، عوامی املاک پر قبضوں کو روکنا، ڈرینیج، آب رسانی، برقی سے متعلق شکایات کی یکسوئی ان کے فرائض میں داخل ہوگی۔
वार्ड का अमला ओहदेदार सेल्फ हेल्प ग्रुप और रजाकाराना तंजीमों के साथ तालमेल करेगा। शिकायत शख्सी या ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की है कि वार्ड ऑफिस का तजुर्बा सारे मुल्क में मुनफरिद व मिसाली होगा और दीगर शहरों में भी इसकी नकल की जाएगी। इस इजलास में बलदी ओहदेदार, अवामी कायदीन, अरकान मुकन्नना, एक रुकन पार्लियामेंट, रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और दीगर सीनियर ओहदेदार शरीक थे। అంటే ఒక నాయకుడికి ఒక అవగాహన ఉండి ప్రణాళిక ఉండి ఆ ఉద్యోగి కష్టం ఏంది, ఆయన పోయినప్పుడు ఆయన అవస్థ ఏంది అవగాహన ఉంటేనేమో అట్లుంటుంది. అట్లా లేకపోతే ఏదో పేపర్ మీద రాయాలి కాబట్టి రాయాలి, పోజులు కొట్టాలి కాబట్టి కొట్టాలంటే మస్తుగా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కూడా నేను మీ నుండి ఆశించేది, వార్డ్ ఆఫీస్లో పనిచేసే మిత్రుల నుంచి ఆశించేది ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా ఆచరణాత్మకమైన టార్గెట్లు పెట్టుకుందాం. ఆచరణలో ప్రజలు కలిసి వస్తే అయ్యేటి కొన్ని ఉంటాయి, కొన్నేమో మనమే చేసేటివి ఉంటాయి. ఏది చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, దానికి తగ్గ విధంగా ఒక మంచి జాబ్ చార్ట్ రూపొందించుకొని ముందుకు పోదామన్నది ఆలోచన. ఇక్కడ మిత్రులందరూ నేను కోరేది, 2014కి ఇప్పటికీ చాలా గణనీయమైన పురోగతి వచ్చింది. మన నగరంలో కూడా గణనీయమైన పురోగతి థ్యాంక్స్ టు GHMC. डिसेंट्रलाइज करने के लिए जो न्यू वार्ड्स के अंदर वार्ड्स बनाए जा रहे हैं, फॉर ऑपरेटिंग इजी ऑपरेशन एंड इजी मेंटेनेंस ऑफ द एरिया, इसे डिसेंट्रलाइज करने की वजह से काफ़ी बेहतर होगा, अच्छा काम होगा। हुकूमत का अच्छा इक़दाम है, इस इक़दाम से लोगों को सहूलत मिलेगी, रोज़मर्रा के मेंटेनेंस कामों के ऊपर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। हम हमारी पार्टी की जानिब से इसके अंदर 1-2-3 मशवरे आपको और देना चाहेंगे कि जो वार्ड्स बना रहे हैं इसके अंदर जो है ना, आप HMWS को भी अगर इसके अंदर इंक्लूड करें मेंटेनेंस के लिए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेंटेनेंस के प्रॉब्लम्स HMWS के अंदर ज़्यादा है। तो जितने वार्ड्स, हर वार्ड के ऊपर आप मैनिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का एक हर वार्ड के साथ एक अटैच कर दिए MOM, तो उससे सीवरेज का जो प्रॉब्लम हर एरियाज़ के अंदर है उसको भी सहूलत होगी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जितने वार्ड आप 150 वार्ड्स के अंदर हर वार्ड में 6-6 वार्ड्स जो बनाए हैं, हर वार्ड के अंदर एक MOM सिस्टम आप HMWS से अगर से लागू करें तो उससे आवाम को फ़ायदा होगा, मेंटेनेंस के जो प्रॉब्लम्स है उसको सहूलत मिलेगी। तो बहरहाल अब काम ये है कि इनिशिएट तो अच्छा है, अब ये तमाम जिम्मेदारी जो वार्ड ऑफिसर्स को तयन किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि हुकूमत के इस इक़दाम का सही इस्तेफ़ादा उठाते हुए आवाम को तकलीफ़ ना हो, उस तरीके से काम करे। इस डेवलपमेंट का कोई भी काम हो, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन उसकी हमेशा तायीद करी है और हुकूमत का साथ देगी हर डेवलपमेंट काम के अंदर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि कायदीन बुनियादी सतह पर मेहनत करें, आने वाली हुकूमत कांग्रेस की होगी। इंदिरा भवन में PCC सुदूर, नायब सुदूर, जनरल सेक्रेटरीज के साथ अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में PCC सदर रेवंत रेड्डी और पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने शिरकत की। इजलास में मानिकराव ठाकरे ने कहा कि KCR हर दिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके खिलाफ अवाम में जाकर हक़ाइक़ से अवाम को वाकिफ़ करवाएं और कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है इससे भी अवाम को वाकिफ़ करवाएं। तेलंगाना में इंतखाबात का मौसम आ चुका है, अगर हम सख्त मेहनत करेंगे तो कामयाबी यकीनी है। इस मौके पर सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी के अहकामात के मुताबिक काम करने वालों को पार्टी बराबर मौका देगी। बोयनपल्ली के राजीव गांधी नॉलेज सेंटर के संग बुनियाद के लिए सोनिया गांधी को मदऊ करने से मुतालिक करारदाद मंजूर की गई है। पार्टी के नायब सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज असेंबली हल्के के इंचार्ज से हर 15 दिनों में एक रिपोर्ट दें। 6 महीने सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। सर्वे की बुनियाद पर टिकट दिया जाएगा। इस इजलास में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के नए सेक्रेटरीज का खैर मकदम किया और पार्टी फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के 100 किलोमीटर पैदल यात्रा मुकम्मल करने पर 27 करारदाद मंजूर की गई। वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से जो खदशात जाहिर किए गए थे, इनको 9 साल में KCR हुकूमत ने गलत साबित कर दिया है। संगारेड्डी में यौम बेहतरीन हुक्मरानी के मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान ऐसा कहा गया था कि अगर तेलंगाना तश्कील दिया गया
तो नेक्स्ट लाइट्स का राज होगा, हर दिन कर्फ्यू रहेगा, हुकूमत चला नहीं सकते। लेकिन इन तमाम खदशात को गलत साबित कर दिया गया। हरीश राव ने कहा कि 9 साल में रियासत तेजी से तरक्की कर रही है। मुल्क के लिए तेलंगाना मॉडल बन चुका है। ऑनलाइन ऑडिट में तेलंगाना रियासत में दूसरे नंबर पर है। डिजिटल ट्रांसफर्स में तेलंगाना नंबर 1 है। मरकज के ताउन के बगैर ही तेलंगाना ने तरक्की की है। तेलंगाना में अवाम को मजहब फिरका देखे बगैर अवामी स्कीमात से मुस्तफीद किया जा रहा है। मजहबी झगड़े यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुल्क और बैरून ममालिक से बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंचिरियाल में माजूरीन के वजीफे में 1000 का इजाफा करने का ऐलान किया है। अब से माजूरीन को 4116 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। हफ्ते के दिन रियासत भर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने माजूरीन के साथ मिलकर खाना भी खाया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि माजूरीन को मुल्क भर में इतना वजीफा दिया जाए, माजूरीन की पूरी मदद करें। तेलंगाना भवन में भी केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। रियासत में 5,40,000 माजूरीन को फायदा हो रहा है। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने तासिंदों के एक्स ग्रीशा की 12 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम जारी की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10वें यौम तासीस के मौके पर तासिंदों के खानदानों में 50 लाख रुपए एक्स ग्रीशा रकम तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौड़ तबके के इज्जत नफ्स के भवन के लिए 5 एकड़ अराजी पर संग बुनियाद के वक्त एक्स ग्रीशा की रकम तकसीम की जाएगी। एक्स ग्रीशा के मुस्तहिक अफराद को आधार कार्ड, बैंक तफसीलात, लाइसेंस की तफसीलात अहदेदारों को देने वजीर ने अपील की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि किसानों को जिस तरह बीमा की रकम दी जाती है, उसी तरह तर्ज पर तासिंदों को भी बीमा की रकम दी जाएगी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि टेक्सटाइल पार्क कायम करने के लिए रियासती हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में रियासती हुकूमत ने टेक्सटाइल पार्क का मुतालबा किया था, अब याददाश्त मुफाहमत के लिए आगे नहीं आ रही है। मरकजी हुकूमत MSP में इजाफा करते हुए किसानों को फ़ायदा पहुंचा रही है। ज़राई शोबे को 20 लाख करोड़ रुपए के कर्जे देने की मनसूबाबंदी की जा रही है। फसलों को नुकसान पहुंचने पर 33% नुकसान की पाबजाई करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कपास की अक़ल तरीन कीमत में 75% का इजाफा हुआ है। भारत ब्रांड के नाम से यूरिया को मुतारफ करवाया गया है। हैदराबाद से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी है। हफ्ते को 3 फ्लाइट्स में 450 आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। हज हाउस नामपल्ली और शमसाबाद एयरपोर्ट पर रियासती हज कमेटी के अहदेदारों, आज़मीन के रिश्तेदारों अहबाब ने उन्हें विदा किया। आज़मीन को रुखसत करने वालों में सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी काबिल ज़िक्र हैं। मौलाना ने आज़मीन को आदाब हज की तलकीन की और उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी के लिए दुआओं की अपील की। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने गोलकंडे में होने वाले बोनाल जुलूस के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक़िद किया। रियासती वजीर ने इजलास में शरीक पुलिस, बरक़ी, आबरसानी और बलदिया के अहदेदारों को मौसर इंतजाम की हिदायत दी। इजलास में रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहियुद्दीन भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से असरा दवाखाने में कायम किए गए मुफ्त खतना कैंप में 16 जून तक तोसी कर दी गई है। अवैसी हॉस्पिटल के RMO डॉक्टर अब्दुल रफीक ने बताया कि कायद मुक़न्नना मजलिस पार्टी व मैनेजिंग डायरेक्टर अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अकबरुद्दीन अवैसी ने खतना कैंप की मुद्दत में तोसी करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि ख्वाहिशमंद अफराद अपने बच्चों की खतना करवाने से 1 दिन पहले नाम का इंदराज करवाएं। पिछले 1 महीने के लिए खतना का कैंप मुफ्त में रखा गया था अवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में। ये पब्लिक डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस कैंप को 16 जून तक फिर
एक्सटेंड किए हैं और इसके लिए एक दिन पहले आकर आपको रजिस्टर करना होगा। दूसरे दिन या तीसरे दिन पब्लिक डिमांड के ऊपर आपको स्लॉट मिलेगा खतना का। शास्त्रीपुरम डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जहां 12 लाख रुपए की लागत से मोहम्मदिया कॉलोनी में सीसी रोड बिछाई जा रही है। शास्त्रीपुरम डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने इस काम का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुअतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी के एमपी बजट से हैदराबाद होटल ता दबीरपुरा नाला की रोड की VDCC सीमेंट रोड की तामीर का काम जारी है। मुतल्लिका रुकन बलदिया आलमदार हुसैन वाला जाही ने बताया कि 98 लाख रुपयों की लागत से ये काम करवाया जा रहा है। रुकन बलदिया ने मकामी मजलिसी जिम्मेदारों के साथ तामीरी काम का रात देर गए मुआयना किया। डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भारी मिकदार में सोने की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। कोलकाता से बराए नेल्लूर ये सोना हैदराबाद मुंतकिल किए जाने की इत्तला मिली थी। नेल्लूर जिले के वेंकटाचलम टोल प्लाजा के पास DRI हुक्काम ने गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो 7.8 किलो सोना सीट कवर के नीचे पाया गया। मजीद सोना हैदराबाद में पकड़ी जाने की इत्तला है। जुमला 10 किलो 27 ग्राम सोना जब्त किया गया है। इस सिलसिले में 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है और एक रिसीवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक खातून ने खुदकुशी की कोशिश करते हुए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक डिपार्चर के पास रेकिंग पर चढ़कर इसने नीचे कूदने की कोशिश की, तभी वहां मौजूद CISF के नौजवान ने उसे रोक दिया। खातून को तहवील में लेकर उसकी काउंसलिंग की गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, बैंक लोन approved project। 25% से बुकिंग, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद में वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जुमे से होगा आगाज। हर वार्ड पर 10 रुकनी अमला, अवामी बलदी मसाइल की यकसुई, KTR का ऐलान। बुनियादी सतह पर कायदीन सख्त मेहनत करें, सर्वे की बुनियाद पर टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। PCC सुदूर जनरल सेक्रेटरीज के इजलास से रेवंत रेड्डी का खिताब।
تلنگانہ تحریک کے دوران تشکیل کو لے کر جو خدشات پیدا ہوئے تھے ان کو غلط ثابت کر دیا. ملک کے ریاست رول ماڈل مذہبی منافرت سے پاک ہریش راؤ کا خطاب. کولکتہ سے حیدرآباد سونا منتقلی کی کوشش ناکام. ڈی آر آئی نے 10 کلو سے زائد سونے کو ضبط کیا. ناظرین خبرنامہ یہاں اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان باز فاروقی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.